All right. Good afternoon, everyone, and welcome. How are you all? If I may ask, why is the energy in the chat box so low today? Good, good, good. Okay. That is better, much better. Okay, then that's how I want it to be. I'm good, Zishan. Thank you so much. Bhagyashri, Sadiq Anwar. Good. So, yeah, uh, thank you for being here today, and let's begin the session. So, before I begin, like, any guesses? What are we going to learn today? I'm good, Gaurav. Thank you so much. Oh yeah, let's begin the fun. No, HA, no, audience, no. ठीक है, चलो. Let the suspense be as it is. And उससे पहले, let me ask you something. Do you know when you join the organization, what will be your role? What will you be joining as? Administrator. Yes, you will be joining as administrator. और administrator क्या करता है? मैनेज करता है क्लस्टर, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर तो हमारे जूनियर्स करते हैं। क्लाउडेज से निकल के अगर मॉनिटरिंग करना है तो फिर क्लाउडेज आके क्या फायदा है ना। क्लाउडेज से निकल के सीनियर पोजीशंस लेनी है। क्लाउडेज जो छोटे छोटे बंदे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के आते हैं, कॉलेज के पास आउट से यहाँ वहां से सीख के आते हैं, वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे। आप लोग बनना ही है अगर, तो कुछ ये बनेंगे। कम हियर एंड सी, go to user roles. When they add you, they should be giving you these privileges. Can you see here? Full administrator. So all these people will be working along with you. BDR administrator, cluster administrator, dashboard user, key administrator, limited operator, navigator, etc etc. आप लोग क्या बनेंगे? आप लोग बनेंगे full administrators. बनना है तो ये बनना है, वरना नो मतलब, है ना। तो बाकी सब तो फिर बातें हैं। कमिंग बैक, तो या तो यू विल बी फुल एडमिनिस्ट्रेटर्स गाइज, है ना। अभी आपका जो रोल है वो क्या क्या रहेगा? पुट इट अप इन द चैट। क्या क्या काम करेंगे आप लोग जब आप फुल एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएंगे? तो व्हाट विल बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, वो तो आपका आर्किटेक्ट करेगा। Keeping the cluster up and running, managing the cluster, maintaining the cluster, making sure that it's available all the time, and taking care of the configurations, etc., etc., etc. Securing, Ahmed Raza Sheikh is telling me securing the cluster. अभी मुझे बताओ कि इसको सिक्योर करने की जरूरत क्यों है? Why do you even need to secure it? हम VPC में बना रहे हैं, VPN होगा, सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा इज गोल्ड, शेख तनवीर टेल्स मी डेटा इज गोल्ड। तो अगर डेटा गोल्ड है तो डेटा को सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब अगर हम क्लाउडेरा का ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी एनेबल नहीं होगी? आपको ऐसे नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आएगा? फिर भी क्या हमको इसको सिक्योर करना जरूरी है? यस? क्यों? व्हाई डू यू से यस? Okay, so many answers coming up. The answer here is that Hadoop was not built with any inbuilt security feature. Hadoop was not built with any inbuilt security feature, and it had a lot of insecurities, like Sumit Manjare is telling me. Yes, it has a lot of insecurities. And they were very sure that the companies, when they will accept Hadoop, they will not use the security feature that comes along with Hadoop. In fact, they will use something that is accepted in the market, that is running in the market, that is popular in the market. तो इसमें कोई इनबिल्ट सिक्योरिटी आई नहीं है। और लिनक्स जो है इसके अपने वल्नरेबिलिटीज है, सो फ्यू पीपल दे, इवन द माइक्रोसॉफ्ट पीपल, दे कॉल लिनक्स एज कैंसर, दे से लिनक्स इज कैंसर। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा है कि उसके बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है इंडस्ट्रीज में। तो लिनक्स इज लाइक अ कैंसर। अगर ये आपको मतलब इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर ये एक बार आपके सिस्टम में एंटर कर दिया तो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू लिव विद इट।
You do not have any option but to live with it. उसको लेके ही आपको चलना पड़ता है. But at the same time, there are many insecurities, many loopholes that come along with it, and you do not have any option but to understand it well and deal with it. It is like that disease with which you have to deal. You cannot get over it. There is no option without it. You cannot get out of it. Okay. So हम ऐसा नहीं बोलते. We love CLI, we love Linux, and we understand how important it is. So uh, when we come to Cloudera Manager, you see there are, I purposely did not suppress this. You see there are certain warnings, certain issues. Can you see the screen, all of you all? Amazing, amazing, amazing. So यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये क्या कह रहा है हमको? Java heap size of name node in bytes. कितना बोल रहा है वो? Java heap size of name node in bytes is recommended to be least 1 GB for every million HDFS blocks. Suggested minimum value is 4.0 GIP gigabits. तो अभी मुझे एक बात बताओ कि 1 मिलियन HDFS blocks, I mean just imagine, we are talking about 1 million HDFS blocks को 1 GB should be enough. 1 GB is enough. No, you cannot say no, Ajinkya, Yogit, Arbaz. You have to say yes, Prithviraj, because that is what Cloudera recommends. Now, yes, it is enough. Enough है, लेकिन क्यों enough है? My answer is, let me see. You have understood so many concepts. Let me see how well you have understood it. So, क्यों enough रहेगा? No, read that again. It is there, right up there on your screen. You have the answer right in front of you. Just don't put in words there, man. Come on. What do you mean by heap size? What do you mean by block? No heap size, no heap size. No. Just because it is recommended by Cloudera, you cannot say that it is. I want a logical reason, guys. इतने दूर आ गई है आप लोगों की batch. We are dealing with a very important concept here, that is insecurities and securities, right? Like security will follow. No, I'm not going to suppress it. 4 GB in production, you're right. Like बताओ मुझे कि क्यों 1 GB enough है every million HDFS blocks के लिए. And consider this as your interview question. Okay, so this is your interview question, and they will ask this to you. Okay, but do you know what is the memory required for every million HDFS blocks? तो आप बोलेंगे yes, I know it's 1 GB. And why is it enough? Why is 1 GB enough? फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे कि अरे सेशन में तो ये बताया ही नहीं था. ऐसे बोलोगे? ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देयर वर मेनी पीपल जिनको इंटरव्यू एक्चुअली प्रैक्टिकली किया गया था. They were given a small cluster like this and they said, okay, now troubleshoot this. All we had to do is we had to understand that Cloudera Manager is semi-intelligent. It is semi-intelligent. It is so smart that it will suggest you things and you have to just follow the suggestions. So when they tell you, do you think what is the memory required for 1 million HDFS blocks? Yes, we do know it is 1 GB. And do you think it should be enough? Yes, sir, it should be enough because it is recommended by Cloudera. But I simply don't say yes. I understand that data is on data nodes and metadata is on name node. Very good, Zaid Ahmad. Bang on. तो मेटा डेटा की जो फाइल्स है वो 1 मिलियन ब्लॉक्स के लिए भी काफी हो जाती है इतनी मेमोरी. नेम नोड पे हमारा डेटा होता है क्या? नहीं होता है. जब नेम नोड पे डेटा नहीं, मीटा डेटा होता है, तो मेटा डेटा के लिए हर 1 मिलियन HDFS ब्लॉक्स के लिए 1 GB काफी है. इट इज मोर देन इनफ. Still, what is recommended is like 4 GB in production. Okay, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जाके यहाँ पे कर देते हैं 4. सेव चेंजेस कर लेते हैं. And then eventually that warning should go away. Similarly, you go to Hive. Once you go to Hive, देखो ये क्या बोल रहा है? 2 is less than the recommended minimum of 4 cores. Now the instance that I have taken, it is not that huge.
तो इसको मैं अभी करने वाली हूँ सप्रेस, क्योंकि अभी हमको इतना यूज नहीं है। ठीक है, अब दिस साइन दैट यू गेट हियर, दिस इज टेलिंग यू यू नीड टू रीस्टार्ट स्टेल कॉन्फ़िगरेशंस। ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे आपके जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये हो चुके हैं बासी, अब इनको हम रीस्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट गो हियर एंड क्लिक ऑन रीस्टार्ट स्टेल कॉन्फ़िगरेशंस, रीस्टार्ट। सो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो क्लस्टर है वो नए कॉन्फ़िगरेशंस के साथ रीस्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गेटिंग रिफ्रेश्ड। and there you can see कि वो execute command restart on cluster। so basically backend में क्या कर रहा है, वो cluster को restart कर रहा है। so आप जो configurations करते हो, जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारे configurations सही रहे। हमको क्लाउडेरा से recommendations मिलते हैं और वो recommendations यूज करके हम उसको रिजॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो जनरली क्लाउडेरा मैनेजर यूज करने का ये फायदा है कि जहां पे भी उसको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, इट विल गिव यू recommendations, वो आपको रेकमेंड करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, and once this is finished we click on finish and it will be restarted, so we'll wait for it। so जब हमारे क्लस्टर पे डेटा आता है, हमारे क्लस्टर पे जो डेटा आता है, वो डेटा जो है अगर नॉन कंप्लायंस डेटा है तो कोई बात नहीं, नॉन कंप्लायंस डेटा है तो कोई बात नहीं। बट इमेजिन, ऐसे इमेजिन कर लो कि हमारी कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, लाइक एसेंचर है, कॉग्नी है, ऐसे कंपनीज हैं हमारे जहाँ पे आपको बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स है, लाइक से क्रेडिट स्विस है या ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आपका वीजा कार्ड, आपका मास्टर कार्ड, आपके अलग अलग कार्ड्स का डेटा उन लोगों के पास है, सारे कस्टमर डिटेल्स वो लोग के पास है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये पूरे उनके पास डिटेल्स है, आपके कार्ड नंबर्स है, and all your transactions they have the details of everything। okay, so now you tell me that can we take even slightest risk of anyone uh, like stealing the data? What can be the threat to the data? Come on, tell me, क्या थ्रेट हो सकता है डेटा को क्लस्टर, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं डेटा को? yes, you have a threat of hacking, data leak, okay, data theft, okay, what else, what else can we do? Loss of data is there, what else can happen? Someone is sniffing, okay, DDoS, what else? Selling to third party, data corruption, misuse। okay, so you all are aware कि क्या क्या हो सकता है। by the time यहाँ पे ये finish आ गया है, let's finish this and the cluster has restarted। okay, तो अच्छा आप ये देख रहे हो, I'll just go to cluster and I'll go to host and you see how many machines are here, 1 2 3 4 5 6 machines are here। and how many machines do I have actually? 1 2 3 4 5 6, and there has to be one more, that is your Cloudera manager। yes, so I've taken 3 data nodes, 1 name node, 1 gateway। हाँ, Cloudera manager web server मैंने यहाँ डाला है। ठीक है, ठीक है, ओके, कम बैक। तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये जो मेरा गेटवे है, ये बस इसका हमको आईपी देखना है। यस, कम बैक। वेब होता है, तो हमारे डेटा को क्या क्या थ्रेट हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये जो कंपनीज है इनके पास जो हमारा इतना सीक्रेटिव डेटा आता है, तो इनको कोई गवर्नेंस, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, दे नीड टू फॉलो। यस, हमारी गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, जैसे कंप्लायंसेस होते हैं, दे नीड टू अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक हिप्पा हो गया, एंड देयर आर मेनी मोर। सो IRE समथिंग दैट इज देयर, फिर टेलीकॉम वालों के लिए कुछ अलग से है। so there are so many rules and these compliances that they need to follow।
and accordingly they need to function. तो ये जो इतना important डेटा आ रहा है, अगर गलती से भी इन कंपनीज के पास से लीक हो गया, अगर इनके पास से लीक हो गया या इनके पास से ये डेटा का थेफ्ट हो गया या किसी ने ये डेटा को मिसयूज किया, तो आपको लगता है कि ये कंपनीज के लिए ये भारी पड़ेगा? गवर्नमेंट इनको बख्शेगी? नहीं बख्शने वाली, गवर्नमेंट इनको नहीं बख्शने वाली। यस यस, आई विल शो यू एवरीथिंग, डोंट वरी ज़ैन, डोंट वरी, डोंट, नो नीड टू रश, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। तो गवर्नमेंट जो है इनको तो नहीं बख्शने वाली, गवर्नमेंट तो इनकी फिर तो हो जाएगा इनका, ये कंपनी बंद करने की कगार पे आ जाएगी। तो ये सब कब होगा? जब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इनको ये पता ही नहीं है कि उस क्लस्टर को सिक्योर किस तरह किया जाए। तो अब आपको समझ में आ रही है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेविटी ऑफ दिस रोल, ग्रेविटी ऑफ दिस जॉब, एंड व्हाई यू गाइस आर गोइंग टू अर्न अमेजिंगली वेल, especially people who are going to go into security. आपको समझ में आ रहा है कि what are you actually dealing with? You're dealing with a live wire. You're dealing with something that is so important, that multi-million dollar companies are at risk if you do not uh, understand the responsibility that comes along with this job and the required knowledge. इसीलिए आप देखोगे कि सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसकी अलग से टीम होती है और बहुत ही एक्सपीरियंस और जो पुराने बंदे हैं वो डील करते रहते हैं इसमें। बट जस्ट इमेजिन कि आपको ये सारा नॉलेज आ गया कि भाई इनसिक्योरिटीज क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है और किस तरह से आपको इसको सिक्योर करना है, तो फिर तो हो गई ना लाइफ आपकी झिंगा लाला, निकल पड़ी, लिफ्ट हो गया, है ना। तो बेसिकली जो है आपका जो डेटा है इसको तीन तरह का रिस्क होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क। तीन तरह की ग्रेविटी से हमको डील करना होता है। एक रिस्क होता है रीड का, कि कोई डेटा रीड कर ले। दूसरा रिस्क होता है राइट का, कि कोई डेटा राइट कर ले, कुछ ऐड कर ले डेटा में। और थर्ड होता है एक्सेस का, कि भाई हम एक्सेस किस किस को देते हैं, who all is taking access। तो जैसे मैंने आपको बोला, सॉरी मैंने प्रोडक्ट बेस्ड बोला, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, ये सब, या जिनके पास, जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हडूप के प्रोजेक्ट संभाल रहे जो कंपनीज, वहां पे आपको जब रिक्रूट करते हैं तो दे आर गोइंग टू एक्चुअली ग्रिल यू ऑन दीज टॉपिक्स लाइक इनसिक्योरिटीज, एंड दे आर गोइंग टू चेक how well you have the knowledge of security. So we will go step by step. First, we are going to deal with insecurities in Hadoop, and then eventually we'll creep security. Clear? So today we are going to see what are the insecurities in Hadoop. Okay, how you can sort of breach the security, and then you are going to learn, like बहुत डिटेल में हम देखेंगे कि insecurities क्या है, और फिर आपको समझ में आएगा importance of सिक्योरिटी। तो फिर आप देखोगे कि सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आर यू ऑल विथ मी? ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं हमारे, उन लोगों को हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल लोग होते हैं उन लोगों को हम, हमारा जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने से आइसोलेट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अभी आप लोग ज्वाइन करोगे एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके? सो व्हेन यू आर अ फुल एडमिनिस्ट्रेटर लाइक आई शोड यू, तो विल यू हैव एक्सेस टू द डेटा ऑफ द क्लस्टर? How many of you all say yes and how many of you all say no? All are saying no. Why भाई? फुल एडमिनिस्ट्रेटर हो आप तो, आपको नहीं मिलेगा एक्सेस तो किसको मिलेगा? अबे, अभी सबका शुरू हो गया। यस यस यस, ईशान सेज यस, रोहित सेज यस, अमित सेज यस, Saurabh says that as full admin, yes 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 yes। No guys, no no no, even the administrator does not have access to the data। तो अगर आप डेवलपर्स को बोलते हो ना कि भैया तू तो गवंडी है, तो आप भी याद रखो आप गोरखा हो, ठीक है?
हम लोग भी क्या है, हम लोग भी वॉचमैन है। हम लोग बस क्लस्टर को गोरखा का काम करते हैं, ध्यान रखने का उसका, कि वो अप एंड रनिंग रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर वो लोग गवंडी है तो तुम लोग भी वॉचमैन हो। डेटा का एक्सेस तो हमको भी नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है। तो आपको, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यूअर्स को ये डाउट आता है, भाई बंदा तो यंग लग रहा है, बंदी तो यंग लग रही है, डायनामिक है, एज भी ज्यादा नहीं लग रही है, मगर इतना नॉलेज, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज इतने डेप्थ में, तो क्या, देखते हैं, आपको क्वेश्चन थ्रो करेंगे वो लोग। तो प्लीज टेल मी, हाउ डू यू एक्सेस द डेटा इन योर क्लस्टर? और बड़े भोलेपन में सर जी बोल पड़ेंगे कि यस सर, आई एम अ फुल एडमिनिस्ट्रेटर, सो आई कैन एक्सेस द डेटा इन द क्लस्टर। नो, डू नॉट say that, you cannot. So आप आंसर ऐसे करोगे कि sir, as you all know that in spite of being full administrators, still we do not have access to the data. In fact, sir, nobody has access to the data of the cluster. Nobody can access the data of the cluster. Even if you're a data analyst, you cannot. Even if you're a data scientist, you cannot. Getting it? तो ये चीज आपको बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कि डेटा जो है उसको किसी का भी एक्सेस नहीं होता है, किसी का भी एक्सेस नहीं होता है। तो आप सबने फेसबुक यूज किया होगा, आप सबने इंस्टा यूज किया होगा, आपको क्रेडेंशियल्स मांगते हैं, लॉगिन करते हैं आप लोग। जैसे ही आप लॉगिन करते हो क्या होता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो क्रेडेंशियल्स है, वो बैकएंड में जाके कहीं हिट करते हैं। वहां पे चेक होते हैं कि आप ऑथराइज हो या नहीं, आपकी क्रेडेंशियल्स सही है या नहीं। हाँ, आप जैसे ही ऑथेंटिकेशन होता है तब आपको लॉगिन मिलता है। तो बेसिकली हमारी जो सिक्योरिटी है वो दो चीजों पे निर्भर करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट that you guys understand these two concepts, authentication and authorization. So इसको एक अच्छे वे में समझाते हैं। हमको भी ऐसे ही समझाया गया था कि there is a maid that walks into your house, okay, and she comes, पहले तो conditions होते हैं मम्मा लोगों के। who can tell me what are the conditions of hiring a maid? घर में एक हेल्प हायर कर रहे हो आप घर में, है ना? तो आपके मम्मी के क्या क्या कंडीशंस होते हैं? एनीबडी कैन टेल, सजेस्ट कर सकते हैं कोई? हाइजीनिक, झाड़ू लगाना होगा, पोछा, शुड बी एबल टू डू द एड्रेस्ड वर्क, काम अच्छा करना चाहिए। ओ कम ऑन, आईटी, आईटी में किसी इंजीनियर को थोड़ी एम्प्लॉय कर रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है यंग नहीं होनी चाहिए, घर में जवान बेटा है, यंग नहीं चाहिए। एग्जैक्टली जिबन करीम को पता है, वही हमको थोड़ी सी मिडिल एजेड चाहिए, है ना? फिर ढंग के कपड़े पहनने वाली चाहिए, उसके बाद क्लीन चाहिए, हाइजीनिक चाहिए, वक्त पे आने वाली चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, और बहुत ज्यादा काम करने वाली नहीं चाहिए। यहाँ वहां के 10 काम करेगी तो हमको जस्टिस नहीं देगी। दो चार काम है ठीक है, तिच्याकडे जास्त काम नहीं है, लेट्स लेट्स हायर हर। तो ठीक है, तो अभी सुबह सुबह 7 बजे आ जाती है। ट्रस्टी वस्टी तो अपने को बाद में पता चलता है ना कि ट्रस्ट वर्दी, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रस्टी, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं वो, है ना, ऑनेस्ट है या नहीं वो, तो ये तो बाद में पता चलता है हायर करने के बाद। शुरू में क्या है भाई, अपियरेंस कैसा है, कपड़े कैसे पहनती है, बहुत ज्यादा यंग तो नहीं है, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, घर में पापा होते हैं, भैया होते हैं, सब होते हैं, दादाजी होते हैं, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। तो या, सो कमिंग बैक, वेयर वाज आई? तो सुबह 7 बजे आ जाती है वो। 7 बजे शी नॉक एट द डोर एंड शी कम्स इनटू द हाउस। सो इज शी ऑथेंटिकेटेड टू कम इनटू योर हाउस? नाउ शी इज बीन हायर्ड, उसकी एक पगार फिक्स हो गई है, she's authenticated. Okay, now can she come into your house and say, oh my god, I'm too tired today, let me take a nap on your bed? ये चलेगा? आके मम्मा के बेडरूम में जाके लेट गई मैडम, आई मारेल, मारेलच नाही, झाडू घेऊन मारेल, है ना? तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, कि आप क्लस्टर के अंदर तो आ सकते हो, लेकिन आपको कितने प्रिविलेजेस है, किस चीज के राइट्स है। आप आ गए, आपने, आपको रीड एक्सेस अगर मैंने दिया है, अब यार एडमिनिस्ट्रेटर ये अपने हाथ में होता है, तो मैंने अगर किसी को रीड एक्सेस दिया है तो बंदा सिर्फ रीड कर सके, फिर उसको राइट करने का ऑथराइजेशन है क्या? नहीं है। फिर अगर मैंने किसी को दिया है कि भाई तू राइट कर सकता है, तो वो राइट कर सकेगा, लेकिन कुछ एरियाज में उसको हर एरिया का एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं। So this is the difference between authentication and authorization, and that is the reason both of them are important. That is the reason
both of them are very 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 important. So before we begin, it is very very important that you understand this concept. ठीक है, ये दो चीजों का जो डिफरेंस है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब मुझे बताओ, आप अगर यूजर को एनक्रिप्ट कर रहे हो, किसी यूजर को एनक्रिप्ट कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे? एनी गेसेस? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स, इट्स ओके। एनी गेसेस? यू विल बी डूइंग इट यूजिंग Kerberos। Kerberos यूज करेंगे हम। और अगर आपको डेटा एनक्रिप्ट करना है तो क्या यूज करेंगे आप? डेटा एनक्रिप्शन के लिए क्या यूज करेंगे? डेटा एनक्रिप्शन के लिए यूज होगा KMS, की मैनेजमेंट सिस्टम। किसी ने सुना है इसके बारे में? ओके, सो ठीक है, नो वरीज, आएगा आएगा, इट्स ऑल कमिंग, है ना? इट्स ऑल कमिंग अप फॉर यू। धीरे 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 वी आर गोइंग टू टेक यू देयर। बस पे अटेंशन टू एवरी सेशन, स्टेप बाय स्टेप। डोंट ट्राई टू गल्प इन अ लॉट ऑफ फूड। जैसे होता है ना कि बहुत सारा खाना एक साथ खा लिया तो गले में जाके फंस गया, उस तरह डोंट ट्राई टू गल्प इन अ लॉट ऑफ नॉलेज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ गड़बड़ में लेने जाओगे, समझ कुछ नहीं आएगा और देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। सो गो स्टेप बाय स्टेप, लेट्स गो ग्रेजुअली एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट्स कम बैक एंड टेक यू टू द काला पानी। टेक यू टू दी काला पानी। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ यूमास्क। ओके, सो यहाँ से आगे अभी आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट आर वी डीलिंग विद एंड व्हाट इज प्री रिक्विजिट ऑफ दिस सेशन, where you need to know little things like why security is important, how are we going to deal with insecurities अगर है तो क्या होता है। अभी आ जाते हैं इन बातों को टेक्निकली इम्प्लीमेंट करने पे। ओके, चलो अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा गेटवे है, गेटवे मशीन, मैंने पब्लिक आईपी कॉपी किया। एंड अब तक तो ये सब मतलब ऐसे प्रो हो गए आप लोग कि पटी से कनेक्ट कैसे किया जाता है, राइट? मतलब नींद में भी अगर कोई बोले कनेक्ट करने तो आप कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, बिकॉज टुमारो व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री एंड यू से ओ माय गॉड वी हैव 5 years of experience guys, or 10 years of experience people, or 2 years of experience guys, और आप पटी पे स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब क्या है? हु इज गोइंग टू बिलीव यू? है ना? चलो आई विल जस्ट चेंज द अपीयरेंस ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। And there you go, and you log in as CentOS. So when I'm dealing with multiple batches, this is a huge confusion. कभी Ubuntu, कभी CentOS, बड़ा कंफ्यूज करता है मुझे। तो अब सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूमास्क। देखो कैसे होता है, देयर वाज समथिंग कॉल्ड अपने गली में सब शेयर होते हैं। हैव यू ऑल हर्ड अबाउट इट? अपनी एरिया में सब शेयर होते हैं, बाहर जाके किसकी चलती है किसी की नहीं चलती है ना। तो बचपन में झगड़े होते तो बोलते थे ना, यार तू मेरी एरिया में आके तो बता, फिर तेरे को बताता हूँ। तो आ तो सही, उस हमारी तरफ आ, फिर तेरे को देखता हूँ। क्यों? अपनी चलती है, वट होता है अपना, है ना? तो अपनी एरिया में तो बस वही सब सब शेयर है। उस तरह से अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब हम स्क्रीन पे ध्यान दो अभी आप लोग सब। व्हाट आई डिड, आई एंटर्ड यूमास्क। क्या बता रहा है मुझे वो यूमास्क? सेंटोस का यूमास्क क्या है? 0002। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैंने किया sudo switch user या sudo नाउ देखो ध्यान दो, यूमास्क रूट का यूमास्क क्या है गाइस? 0022। कैन यू सी द चेंज? यहाँ पे देखो 0022 इज द रूट यूमास्क। अब हम क्या करते हैं, हम अब हमारे क्लस्टर पे जाते हैं, HDFS। HDFS में कॉन्फ़िगरेशंस में हम चेक करेंगे यूमास्क। सर्च में डालो यूमास्क, एंटर करो, दिखा आपको 022। What are these numbers? Vishal is asking me what are these numbers?
if you allow me to explain to you, Vishal, you will understand what are these numbers, and that's what I'm trying to do. So there is something called patience which you need to have. Okay, so 022 या 0022, दिस इज द यू मास्क. आपको एचडीएफएस पे दिखाई दिया क्लस्टर पे कि एचडीएफएस का यू मास्क वही है जो हमारे रूट का यू मास्क है. इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो एचडीएफएस है वो हमारे क्लस्टर का रूट है. एग्जैक्टली exactly. तो अभी हम अगर ये बोले कि एचडीएफएस के एनवायरनमेंट में या हडूप के एनवायरनमेंट में एचडीएफएस शेयर है तो समझ में आएगा. तो वो उसका इलाका हो गया, वो उसका इलाका हो गया, वहां पे वो सुपर यूजर होगा. और फिर जो दूसरे यूजर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर रूट भी वहां पे जाता है और कुछ करना चाहता है एचडीएफएस पे, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि लिनक्स के एनवायरनमेंट में रूट राजा है, लेकिन हडूप के एनवायरनमेंट में राजा कौन है? एचडीएफएस है. करेक्ट. तो रूट की जो इज्जत है वो क्लस्टर पे उतनी चाहिए जितनी किसी और यूजर की है. तू रूट रहेगा अपने घर पे लिनक्स पे, यहाँ पे नो, यहाँ पे एचडीएफएस राजा है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई. अगर आपको यूमास के बारे में और पढ़ना है तो मैन यूमास कर लो. Basically, UMass, if they ask you what is a UMass, so you will have to say that it determines what level of user you are in a particular environment. What kind of user you are in a particular environment is your UMass. Sorry about this. Just a minute. All right, all right. Okay, so यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अभी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज पे लेके जाते हैं. आपको यूमास अभी मैंने बता दिया, यूमास का कॉन्सेप्ट आया. अब आगे चलते हैं हम लोग. हाँ, अभी आपको मैं लेके जाती हूँ ईटीसी पासवर्ड्स में. देखो, हम कैट करेंगे ईटीसी पासवर्ड्स को. आपको कहीं सेंटोस दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है सेंटोस? ऊपर से फर्स्ट है शायद, राइट ऑन द टॉप. मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? दिखा 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 दिखा. राइट ऑन द टॉप. या जस्ट डू ग्रैब सेंटोस. ठीक है, तो आईडी क्या है सेंटोस का? 1000. 1000. और अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ हाइव या यान या एचबेस, इन सब का बिलो 1000 है. राइट. तो इससे हमको क्या समझ में आता है? सेंटोस जो है वो हमारा ह्यूमन यूजर है और बाकी सब जो है वो हमारे एप्लीकेशन यूजर्स है. देखो यहाँ पे यू देख लो, सेंट्री देख लो, हाइव देख लो, सबका बिलो 1000 है ना? लेकिन जो हमारा सेंटोस है वो ह्यूमन यूजर है, उसको हमने क्रिएट किया है, सो दैट इज अ ह्यूमन यूजर. और बाकी सब जो है वो हमारे एप्लीकेशन यूजर्स है. ये चीज याद रखना कि जो ह्यूमन यूजर्स होता है उनका जो आईडी होता है वो अबव 1000 होता है, और जो आपके एप्लीकेशन यूजर्स होते हैं उनका बिलो 1000 होता है. सो फार क्लियर? ओके, ग्रेट. Moving forward. Now let's do Hadoop fs -ls and / enter. So is this the result that was desired? आपको HDFS दिख रहा है क्या? नो नो नो. अब क्या करते हैं हम लोग? एक मिनट, लेट मी चेक विच इज माई गेटवे. Cloud Data Manager, HDFS, instances.
Now what I'm going to do, I'm going to put the gateway on this particular machine. कौन सा है देखो, आईपी देख लो 144। 144 कहाँ है? हाँ, यहाँ पे हमने HDFS का गेटवे डाल दिया। अब देखो आ गया गेटवे 144 पे, दिख रहा है। अमेजिंग। अब सेम चीज हम करके देखते हैं। डिप्लॉय क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फटक से। As I told you, it's semi intelligent. It will quickly tell you do this. बहुत ज्यादा काम नहीं है, एकदम मक्खन है बाद में। Once you understand, देखो करना क्या है वो बहुत इजी है, लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, that is really really important. रोल्स देखने हैं आपको, रोल प्लेसमेंट देखना है, दिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। होस्ट में जाओ, रोल्स में जाओ, ये देख लो। अब ये रोल प्लेसमेंट जो होता है, अगर आपको कोई पूछे कि एक्सप्लेन अबाउट द रोल प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप इंटरव्यू में? अगर आपको कोई ये पूछता है कि रोल प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बोलोगे? चीजें भूलने लग गए हो आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो चीजें भूल रहे हो। कहाँ से रोल प्लेसमेंट सीखते हैं हम लोग? Very good. Who came up with it first? Zishan Tamboli. Amazing. Happy to hear that. No cloud era documentation. We go to deploy like a boss. That is the document, the best one available for reference. And I just go to deploy like a boss and I deploy from there after reading it. It is the best document available so far for deployments of production grade clusters. That's what you say. Okay. Okay. Coming back. Let's come back. नाउ गेटवे मशीन पे आते हैं। हमारी गेटवे मशीन पे आते हैं। अभी सेम कमांड हम टाइप करके देखते हैं। आप एरो करो। वाओ, कैन यू सी HDFS नाउ? अब ये गुड साइन है कि ये बैड साइन है? Should this happen? Should anyone who is a human user like CentOS have the access to your cluster? एक्सेस मिला कि नहीं मिला? क्लस्टर दिख रहा है ना? तो क्या आपके क्लस्टर को किसी को एक्सेस होना चाहिए? दो चीजें यहाँ से समझ में आती है। एक तो ये एक इनसिक्योरिटी है। दूसरी चीज क्या समझे आपने? रिकॉल करो पिछले 4-5 मिनट, what all we did, and tell me what else did you understand? Nobody is talking about gateway, guys. गेटवे से जब आप आते हो तो आपको क्लस्टर को एक्सेस है, तो इसका मतलब जो जो लोगों को हमने गेटवे से आने के लिए अलाउ किया है, उन सबको हमारे क्लस्टर को एक्सेस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब आप बोलोगे मैम लेकिन गेटवे से तो वही लोग आएंगे जिनको हमने ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज किया है ना? तो फिर किस बात का डर? फिर किस बात का डर? तो आपने सबने ये कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड लाइक टू एग्री कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमको धोखा देने वाले लोग होते हैं ना जिंदगी में, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट समवन हु डू नॉट नो यू। राह चलते लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो आस्तीन के सांप ही होते हैं। दे नो अबाउट यू, दे नो अबाउट योर इनसिक्योरिटीज, दे नो अबाउट द लूप होल्स इन योर फैमिली। उनको पता होता है कि कमजोर कड़ी कौन सी है जहाँ पे हथौड़ा मारना है, जहां से टूट जाएगी ये चीज, है ना? वुडंट यू लाइक टू बिलीव दिस? तो घर का भेदी लंका ढाए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अब हमारे अपने ही होते हैं जिनसे हमको प्रॉब्लम होता है। तो अभी आप एक टीम में काम कर रहे हो, सिर्फ 20 एडमिन है आपकी टीम में फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब उनमें से कोई ये कॉन्फ़िगरेटर है और आपको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देके रखे हैं। ये बंदा बड़ा होशियार है, इसका इंटरव्यू एकदम फाड़ू ढांसू था, इसको फुल एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। और वो बेचारा बहुत स्ट्रगल करके आया है और उसको फुल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया। तो आपको लगता है उसके दिल में जलन होगी? 4-5 लाख ज्यादा कमा रहे हो आप किसी से, उसको आपका पैकेज के बारे में पता है, उसकी उम्र भी आपसे ज्यादा है, एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है,
और आपको लगता है कि उसको आपसे हसद, आपसे जलन होगी? होगी ना? तो आपको लगता है कि ये बंदा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा? अभी आप कैंटीन में चले गए और कैंटीन में आप किसी से बात कर रहे हो और आप हिल ही नहीं रहे हो वहां से, और ही इज टेलिंग यू एक्सक्यूज मी एंड यू आर नॉट रेडी टू मूव, और वो बोलता है चिढ़ के आपको, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, एंड यू आर लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, और हो गया झगड़ा और वो हो गई खुन्नस। अब हो गया खुन्नस, अब उसको आपकी जिंदगी बनानी है हेल। तो अब ये इंसान आप पे नजर रख के रहेगा कि आपकी गलतियां पकड़े, ऐसे होगा ना? और ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। जहाँ चार बर्तन एक साथ आते हैं वहां आवाज होनी ही होनी है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज पीपल हु आर देयर अराउंड अस। बी हम्बल, बी गुड, सबसे बनाए रखो अपनी, which doesn't mean that you compromise on anything in your ethics, but yeah, definitely be humble. Your goodness will take you a long way. Maybe your knowledge may ditch you, but not your goodness, right? Your attitude, your character will never ditch you. Coming back to where we were, तो गेटवे से अंदर आने वाले भी हमको धोखा किस तरह से दे सकते हैं, ये अभी हम देखते हैं। ओके, सो दो चीजें हमको समझ में आई कि अगर जो लोग गेटवे से आते हैं उनको क्लस्टर से एक्सेस है, 6.2 है सोहेल। एंड जो लोग जिन लोगों को हमने एक बार गेटवे से अंदर आने की परमिशन दी, दे कैन सी द क्लस्टर। अभी राइट परमिशंस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पे अटेंशन टू द स्क्रीन। अभी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू मेक अ डायरेक्टरी, mkdir user, hold on, send off, enter। क्या बोल रहा है वो? राइट परमिशन दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। नाउ वी गो टू द क्लस्टर, Cloudera Manager, go to HDFS, go to Configuration, वहां पे dfs.permission टाइप करें। जैसे ही आप टाइप करते हो आपको आ जाता है। कैन यू सी देयर योर HDFS permissions are checked? एक टिक है उसके ऊपर, यस, उसको अनचेक करो। This is a security feature that Cloudera comes with, Cloudera Manager comes along with. इसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको अगर हमने अनचेक रख दिया, इफ वी डू नॉट चेक इट, अब देखे क्या होता है। सेव चेंजेस, अभी क्या हो गया, हमको स्टेल परमिशंस जो है वो रीस्टार्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो हमने ट्रू का फॉल्स किया, कैन यू सी द पिंक एंड द येलो लाइन? जो ट्रू था उसको हमने फॉल्स कर दिया वहां पे। यस, अभी रीस्टार्ट स्टेल सर्विसेज। गाइज प्लीज पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स। ओके, रीस्टार्ट। तो दिस इज एन इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर ऑफ Cloudera मैनेजर। अभी आपको कोई पूछेगा इन द इंटरव्यू, so please tell me where do you go and check the configurations? Where do you check the configurations? तो आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे? Where do you check the configurations? You check the configurations in a snippet or a valve. Okay, that's what it is called. It is a snippet or it's a valve. We are waiting for the finish button to come. Okay, just give me a minute here. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आया क्या फिनिश?
screen is stuck. Let me see what's wrong. Hold on. HDFS configuration में changes कर रहे हैं हम लोग. I don't know why it's running so slow. Okay, any which ways, we don't need to wait for this. Let's come back to the screen and let's try to do our work. ये background में चलता रहेगा. Main हमको HDFS में change हो गया, काफी है. The screen isn't shared. The screen is not stuck. The screen is shared. Can you see the script that's there? Okay. Let's try to make a directory. So, बन गई directory. तो सारे सर्विसेज वो रीस्टार्ट करता रहता है. मेन हमारा HDFS रीस्टार्ट हो गया तो हमारी डायरेक्टरी बन गई. इज दैट क्लियर नाउ? कि वो जो dfs.permissions है उसको अगर आप अनचेक करोगे तो लाइक एनी अदर यूजर ऑल्सो आप एक डायरेक्टरी जाके बना सकते हो. तो अभी आप रीड कर पाए डेटा. मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ग्रेविटीज को हमको फेस करना होता है. नंबर 1 रीड, नंबर 2 राइट एंड नंबर 3 एक्सेस. तो मैंने आपका पहला जो इनसिक्योरिटी है वो आपको बताया कि आप रीड कर पा रहे थे. राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? गिव मी अ थम्स अप. रीड एक्सेस देखा आपने, गेटवे से जाके HDFS दिखा हमको, क्लस्टर को हमने एक्सेस किया. सेकंड राइट एक्सेस देखा आपने कि मैंने आपको एक डायरेक्टरी बना के बताई. जस्ट एक नॉर्मल सेंटोस यूजर है, उसने डायरेक्टरी भी बना के बताई आपको, तो आपको राइट एक्सेस भी मिला. अभी आता है तीसरा एस्पेक्ट. तीसरा एस्पेक्ट होता है हमारा जिसको हम कहेंगे डेटा को एक्सेस करने का. वेरी गुड अजिंक्य, विच मीन्स अफवान, अजिंक्य, दे आर ऑन हाई अलर्ट मोड. मस्त रेड बुल पी के बैठे सब लोग, है ना? ठीक है, चलो. अब अभी क्या है, स्क्रिप्ट है हमारे पास. आपको एक बनी बनाई स्क्रिप्ट मिलेगी. स्क्रिप्ट फॉलो करो आराम से और बस हो जाएगा. तो अभी हम एक यूजर क्रिएट करेंगे. यूजर का नाम हमने दिया है जिंगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिंगा. अब देखेंगे ये जिंगा यूजर हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और ये जिंगा क्या क्या करेगा. तो basically there is this concept of impersonation. Impersonation means what? यहाँ तक आपको मैं आज बताऊंगी. Before that, let's come to the script and see what commands we are executing. अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, sudo user add जिंगा. मैंने एक यूजर ऐड किया जिंगा नाम का, है ना? पप्पा ने बोले ऐड करो यूजर जिंगा. स्टिक टू यूजर ऐड, दे विल डू द सेम थिंग, बट ऐड यूजर में 2-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं. ओके, तो यूजर ऐड हो गया. कम बैक टू द स्क्रिप्ट. अभी इसको हम पासवर्ड दे देते हैं. अब जिंगा ने क्या किया, जिंगा आप लोगों से बहुत ज्यादा होशियार है. अब ये बंदा जो है ये एक हैकर है. ये आपकी जिंदगी हेल बनाने के लिए पैदा हुआ है. इसको तकलीफ देना है आपको, इसको प्रॉब्लम है. तो इसने क्या किया, ये बोलेगा नहीं भाई मुझे तो ये बंदे की वाट लगानी है आज, इसको तो मुझे सबक सिखाना है. तो इसने आया, इसने अपने नाम का एक जो उसका जो नकली नाम है वो नाम का एक यूजर क्रिएट किया और उसको पासवर्ड भी देके रख दिया. ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली. इसका पासवर्ड बन गया है. अब क्या करता है जिंगा, देखते हैं चलो. अब जिंगा बोल रहा है sudo su switch user, एंटर. sudo su जिंगा कर दिया इसने. देख रहे हो जिंगा आ गया क्लस्टर के ऊपर. लॉगिन कर दिया जिंगा ने. ओ माय गॉड, अब आपके क्लस्टर पे लोगों के वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें सेव्ड है और ये तो बंदा आ गया है क्लस्टर पे. अब जैसे PWD देते हैं तो आ गया जिंगा. होम में जिंगा के नाम का बन गया यूजर होम डायरेक्टरी में. अभी हम कहाँ पे है, हम जिंगा के होम पे है.
कैन यू ऑल सी इट? समझ में आ रहा है? Okay, let's proceed now. Okay, pay attention to the screen now. Next. Sudosu. क्या बोल रहा है ये? अब ये जो लिनक्स है ये बड़ा कॉमेडी कर रहा है. किसने किसने आयरन मैन से ये वर्ड सुने हैं? With great power comes great responsibility. ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो जिंगा है उसके पास सूडो एक्सेस है क्या? सुपर डुअर है क्या वो? नहीं है. ही इज नॉट अ सुपर डुअर. उसका उसके पास सुपर डुअर एक्सेस नहीं है. ले, अब क्या फायदा हुआ इतने का? अब देखो जिंगा इस चीज के साथ किस तरह से खेलता है. पे अटेंशन नाउ. अब देखो क्या कर रहा है जिंगा. एग्जिट किया है जिंगा ने. हम सेंटोस पे आ गए. अब वो करेगा सूडो, यानी अभी सेंटोस तो ईटीसी पासवर्ड में उसकी एंट्री है, हम सब ने देखी है, राइट? अब जो जो ईटीसी पासवर्ड में होते हैं यूजर्स उन सबको ऑनर करता है हमारा क्लस्टर, उन सबको ऑनर देता है. तो अभी सेंटोस सूडो यूज कर सकेगा क्या? डेफिनेटली यूज कर सकेगा. तो उसने एग्जिट करके सेंटोस पे आया एंड नाउ वो कर रहा है सूडो वी स्टूडियो, वी सूडो, एंटर. वी सुडो नाम की जब आप फाइल ओपन करते हो, नीचे आना है एकदम, थोड़ा सा स्क्रॉल करके. व्हेन यू कम डाउन देयर यू विल सी समथिंग कॉल्ड व्हील. देखो व्हील. तो यहाँ पे नीचे कमेंटेड है, उसको अनकमेंट करो. तो जैसे ही आप उसको अनकमेंट करते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो जिंगा है वो सुपर यूजर बोल के ऐड करने का प्रिविलेज उसको मिल जाता है. अच्छा, आप एक चीज याद रखना, जब भी आप वी सुडो करोगे ना, आई एम श्योर आप नैनो से कंफर्टेबल हो पर वी से कंफर्टेबल नहीं हो, तो वेन एवर यू ओपन दिस वी सुडो फाइल्स, मेक श्योर यू प्रेस आई. जैसे आप आई प्रेस करते हो, ये नीचे देखो इंसर्ट वर्ड आया है. दैट वर्ड इंसर्ट यू कैन सी हियर, ये नीचे इंसर्ट आ जाता है. आई मीन्स इंसर्ट मोड. इंसर्ट मोड जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक के लिए आप ये चीज नहीं कर पाओगे कि भाई उसमें कुछ इंसर्ट कर सको या कुछ राइट कर सको. ओके, तो एक मिनट. हाँ, लेट मी जस्ट प्लग दिस थिंग हियर. होल्ड ऑन. इसको प्लग इन करने दो मेरे को थोड़ा सा. हाँ, ओके. तो इंसर्ट करो और फिर ही आपको जो चेंजेस करने हैं आप कर सकेंगे. I for insert, escape, colon W2 for save and exit. Okay, so Nikhil is trying to help us out there. तो I करने के बाद आप इसको डिलीट करो, ये कमेंट को, इसको अनकमेंट कर दिया मैंने. आप सबने गौर किया, वो व्हील के आगे जो हैश की था, कमेंट में था वो, उसको मैंने अनकमेंट किया. ओके, नाउ एज निखिल ऑल टॉट अस VI कैसे यूज करना है, तो escape colon W क्यों करो. अब देखो क्या होने वाला है. पे अटेंशन नाउ. ठीक है, सुडो सू जिंगा करेंगे अभी हम. आ गया, जिंगा पे आ गए हम लोग. अब हम क्या कर रहे हैं, sudo to CentOS. फिर पासवर्ड मांग रहे हैं. एक मिनट. हाँ, एक मिनट, वी हैव टू रन अ कमांड हियर. अभी ये जो आप ये जो कमांड देख रहे हो, यूजर मॉड -ag wheel जिंगा, तो व्हील में जिंगा को ऐड करेंगे. इससे क्या होगा कि जिंगा जो है सुपर यूजर परमिशन यूज कर पाएगा. कम बैक टू योर स्क्रीन, फायर द कमांड. CentOS पे आ रहे हैं हम, एंड देन वी फायर द कमांड. sudo यूज करो. अब देखते हैं. ये नाउ वी आर डन.
तो पप्पा ने बोले यूज करके यूजर मोड हाइफन एजी व्हील जिंगा किया हमने। तो इससे क्या हो गया कि अब जो जिंगा है वो हमारे सुपर डुअर्स लिस्ट में ऐड हो गया है। लेट्स प्रोसीड नाउ। अब करके देखते हैं हम लोग। जिंगा पे आ जाते हैं अभी। एस यू जिंगा करो या सुडो सु जिंगा करो, स्विच यूजर टू जिंगा। आ गया जिंगा पे। सीडी करके सेंटोस से बाहर निकले। अभी हम जिंगा पे है। सुडो सु सेंटोस। तो अब देखो, सेंटोस से जिंगा एंड जिंगा से सेंटोस, टू एंड फ्रो हम जा पा रहे हैं, राइट। तो अब सुपर यूजर अकेला सेंटोस बचा क्या? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अमित, इसका मतलब अमित इज हैविंग एन आफ्टरनून नैप। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आप व्हील में ऐड करते हो जिंगा को, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसके जो सुपर डुअर्स वाले पावर्स है वो उसको मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम करेंगे सुडोसु जिंगा। आ गया जिंगा पे, सीडी करो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पूछा सिस्टम से हु एम आई, वो बता रहा है जिंगा। अब अब देखो कैसे आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है हमारे, और कैसे हमको झूठ बताया जा रहा है। ठीक है, हाउ जिंगा इज ट्राइंग टू हाइड इट्स आइडेंटिटी। अब देखो मैं उसको बोलती हूँ, पप्पा ने बोले हु आर यू, सच सच बताना। उसके सर पे बंदूक रख के जब पूछा गया तो क्या बोला जिंगा ने? कौन है वो? रूट। एग्जैक्टली, जिंगा रूट है। तो अब हो गया जिंगा रूट, मिल गए उसको रूट प्रिविलेजेस, बन गया जिंगा सुपर यूजर। अब कितना सिक्योर है भैया आपका क्लस्टर? कितना सिक्योर है आपका डेटा? एग्जैक्टली लग गई, बिग टाइम, है ना। अब जिंगा क्या क्या कर सकता है क्लस्टर में, हम वो देखते हैं। Are you all enjoying today's session, guys? This was one of my favorite ones. Okay. Because everyone is going to teach you about the pros. No one teaches you about cons. कोई ये नहीं बताता है कि ये चीजें भी होती है। There are many people who are going to go ahead and teach you what security means. But no one is going to tell you what are insecurities. And that is why Cloud Age is Cloud Age. That is why people from Cloud Age are so popular in the market. And that's why you have the kind of knowledge that you get here. And people are earning amazingly well. Did you mean Jinga has same privileges like CentOS? Jinga has same privileges like root now. बंदा तो रूट बन गया है ना। अब चलो, अब आगे का काम करते हैं हम लोग। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और जिंगा के नाम से बना रहे हैं। चलो, Hadoop fs -mkdir यूजर जिंगा। यूजर में एक जिंगा की डायरेक्टरी बनाई हमने, बन गई, क्रिएट हो गई, रीड भी किया, राइट भी किया, डायरेक्टरी भी बनाया। बंदा पता नहीं क्या क्या करेगा। एलएस करके देखते हैं। देखो ध्यान दो, जिंगा बन गया, ओनरशिप आ गई उसके पास, और सुपर ग्रुप है उसका। सेंटोस एक सुपर ग्रुप है और जिंगा भी एक सुपर ग्रुप है। ओनरशिप आ गई बंदे के पास, तो सीधा सीधा सुपर ग्रुप का ओनर बन गया, जैसे एचडीएफएस है। एचडीएफएस इज वन ओनर ऑफ अ सुपर ग्रुप एंड सेम इज विद जिंगा। कैन यू सी दैट? अब तो जिंगा जो चाहे वो कर सकता है ना। चलो लेट्स प्रोसीड, देखते हैं जिंगा क्या क्या कर सकता है। अभी हम क्या करेंगे, नैनो से एक फाइल बनाएंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको, स्क्रिप्ट में सब कुछ दिया है। This is a test for Hadoop security. This is a test for security, test for security, test for security. Copy and paste. Control O, Control X, Enter. बन गई फाइल। Let's move forward. अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं। कहाँ पे डालते हैं? हमारे क्लस्टर पे इस फाइल को भेज देते हैं हम लोग। So what did we do? Hadoop fs -put file and dot। मतलब जो नैनो से हमने फाइल बनाई उसको हमने हमारे क्लस्टर पे डाल दिया। अब हम ls करके यूजर जिंगा करके देखते हैं। कैन यू सी द फाइल देयर? जिंगा डायरेक्टरी में फाइल आ गई है।
और प्लीज पे अटेंशन कि यहाँ पे देखो जहाँ 3 है वहां पे उसके 3 रेप्लिकास बने हैं। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू द परमिशंस गाइस, रीड राइट रीड रीड परमिशंस है, राइट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो झिंगा ने क्या किया, अपने नाम की डायरेक्टरी बनाई और एक फाइल बनाई। अब ये समझ लो कि वो फाइल में सारा कंप्लायंस डेटा है, फाइल में सारे मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के नंबर्स है, और उसने वो पूरा कॉपी करके फाइल में डाला और अपने डायरेक्टरी के अंदर भेज दिया। अभी हम देखते हैं कि जिंगा कोई जॉब रन कर सकता है क्या, जॉब रन करके डेटा चुरा सकता है क्या? लेट्स सी दैट। कॉपी पेस्ट करो जार, ये पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपका 6.2 है तो, ये स्क्रिप्ट में मैंने चेंज किया है, रिकॉर्डिंग से ये चीज उठा लेना। तो ये देखो ये एक वर्ड काउंट का फाइल है, और जो डिस्टिल डेटा है, डिस्टिल डेटा ये हमारी आउटपुट वाली फाइल है। ये फाइल पे जब हम ये मैप रिड्यूस का जॉब रन करेंगे वर्ड काउंट का, तो उसका जो आउटपुट है वो ये डिस्टिल डेटा में स्टोर होगा, ये हमारी आउटपुट डायरेक्टरी है। एंटर, लेट्स सी इफ द जॉब इज रन सक्सेसफुली। There it is running the job, guys. Can you see? Bytes written 44. Amazing, isn't it? All Jinga needed was access to the gateway, या कोई दूसरे नोड से, डेटा नोड से भी वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जिंगा इंटरनल है उसके पास, उसी टीम में काम करता है। तो जनरली जो हमारे टीम में काम करते हैं उनके पास की तो होती है ना? अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। Hadoop, FS, -ls, -user, Jinga। अब देखो, ध्यान दो वहां पे, परमिशंस पे ध्यान देना, और डिस्टिल डेटा नाम की हमारी डायरेक्टरी बन गई। दिख रहा है आपको? कैन यू ऑल सी इट? नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग। नाउ व्हाट एम आई डूइंग? Hadoop fs -ls -r, अब ये कैपिटल R मैंने रिकर्सिव के लिए डाला है, और यूजर मतलब पाथ दिया है मैंने जिंगा की डायरेक्टरी का। देयर यू कैन सी कि आपके 3 रेप्लिकास वहां पे बने हुए हैं, एंड यू कैन सी ऑल 3 फाइल्स। अब ये फाइल को हमको रीड करना है, ये फाइल्स को हमको रीड करना है। लेट्स सी हाउ वी डू इट। ओके, व्हाट हैव आई डन? fs कैट एक बहुत मामूली सा कमांड लगता है जब हम कैट की बात करते हो। कैट कितने बड़े बड़े काम करता है देखो अभी यहाँ पे। Hadoop fs -cat यूजर जिंगा, उसकी जो डायरेक्टरी है डिस्टिल डेटा, उसका हमने वो जो एक पार्ट है ना वो उठाया है, और वहां पे कॉपी पेस्ट किया है, नथिंग एल्स, बस पाथ कॉपी पेस्ट किया है। एंटर, दैट इज इट। जिंगा ने जो जॉब रन किया उसने सब कुछ उगल दिया। हडूप वर्ड कितनी बार आया, सिक्योरिटी कितनी बार आया, ये वो। तो अगर इसमें से मुझे स्पेसिफिकली सिक्योरिटी वर्ड ढूंढना है, या ये बोलो कि स्पेसिफिकली पासवर्ड्स ढूंढने हैं, तो इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी? इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी? तो जिंगा is able to use the cluster resources. Jinga is able to access the cluster resources. Jinga is able to write on the cluster. Jinga is able to use the cluster. Now you think अगर जिंगा को कंपनी ने बहुत सताया है, जिंगा को कंपनी ने पेमेंट वक्त पे नहीं दिया है, जिंगा की लाइफ हेल बनाई है कंपनी ने, तो जिंगा ये सारा डेटा लेके फरार हो सकता है और थर्ड पार्टी को ये सारा डेटा बेच के जिंगा मस्त लाइफ जिंगा लाला बना सकता है अपनी। लेकिन आप बोलोगे कि आपको मैंने एक चीज के बारे में बताई थी। नाउ लेट्स कम टू द क्लस्टर, एंड देयर इज समथिंग दैट इज देयर ऑन द क्लस्टर व्हिच इज कॉल्ड नेविगेटर। हैव यू हर्ड अबाउट नेविगेटर? अब हमने वो लिया नहीं है सर्विस, लेकिन नेविगेटर होता है क्लस्टर पे। होल्ड ऑन, कैन यू सी नेविगेटर, मेटा डेटा सर्वर, नेविगेटर ऑडिट सर्वर? अब हमने वो ऐड नहीं किया है, लेकिन हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये नेविगेटर क्या होता है गाइस? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया अबाउट इट? क्यों यूज होता है नेविगेटर? क्लाउडेरा नेविगेटर, यस। मॉनिटर करता है वो कि कौन क्या कर रहा है, तो आपकी जो ऑडिट टीम आती है उसको कैसे पता चलता है कि किसने क्या किया है?
यस, तो वो उसको पता चलता है नेविगेटर के थ्रू, नेविगेटर ऑडिट सर्वर के थ्रू। तो अब क्या इनको ये नहीं पता चलेगा कि जिंगा आया था, जिंगा ने अपना यूजर क्रिएट किया, जिंगा ने हमारा डेटा चुराया, और क्या उसको सू नहीं करेंगे, उसको पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी कंपनी उसकी, उसको उसके ऊपर केस नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो आपको लगता है क्या कि जिंगा इतना बेवकूफ है कि अपने नाम से सारे काम करेगा? जिंगा बदमाश तो है भाई, बहुत बदमाश है, पर क्या बेवकूफ है वो? प्रोबेबली आपके और मेरे से ज्यादा होशियार है वो, है ना, बदमाशी वाला होशियार है, पर होशियार है। तो ना हाउ वी डील विद दिस केस सिनेरियो, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। Please pay attention to the Khalapani, to the screen, and eventually you will understand. Let us just run one more job here. हम एक और जॉब रन करके देखते हैं, पाए वाला जॉब रन हो रहा है, मतलब क्या, जिंगा विल बी एबल टू रन हिज जॉब आल्सो, ही विल बी एबल टू फाइंड कि हाँ बताइए ये पूरे डेटा में से मास्टर कार्ड के एंट्रीज कितने हैं, पूरे डेटा में से पासवर्ड्स निकाल के दो, पूरे डेटा में से वीजा कार्ड एंट्रीज कितने हैं, कि ये वाले नाम का पर्सन है क्या नहीं है, ये वाले नाम के पर्सन का पासवर्ड क्या है, एवरीथिंग ही विल बी एबल टू फेच। एंटर, देयर यू गो। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई मिल गया आपको, यानी हमने एक पाई वाला जॉब भी रन करके आपको बता दिया। अब आते हैं हमारे अगले कमांड पे। दिस तो आई ऑलरेडी डिड फॉर यू, कैट वाला। नाउ लेट्स डू दिस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, HDFS फाइल चेक FSC के यूजर जिंगा फाइल फाइल्स ब्लॉक्स एंड लोकेशंस, मतलब कितने फाइल्स है, कितने ब्लॉक्स है, उनकी क्या क्या लोकेशंस है, हमको तुम सब बताओ, ये वाला कमांड हम टाइप कर रहे हैं। कैन यू सी, इट इज गिविंग अस एवरेज ब्लॉक रेप्लिकेशन इज 3, कहाँ पे है, क्या है, आपको वो सब बताएगा। नंबर ऑफ डेटा नोड्स कितने हैं, 3 है, रैक पे है वो। और आगे जाके ऊपर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो सी इट्स गोना इवन टेल यू कौन से डेटा नोड का, लिनक्स की आदत ही है ये सब कुछ उगलेगा। इट विल गिव यू एवरीथिंग, जो नहीं पूछा वो भी बताएगा। देखो, इसलिए मैंने बहुत स्मार्टली 3 डेटा नोड्स लिए। अब इमेजिन कि अगर मेरे पास 10 या 50 डेटा नोड्स होते थे, तो रैंडमली वो किसी भी 3 डेटा नोड पे डेटा डाल देता था, और फिर मुझको ढूंढते बैठना पड़ा होता कि कौन से डेटा नोड पे ये सब इंफॉर्मेशन गई है। अभी 3 ही डेटा नोड्स है, तो यू कैन सी हियर। देखो लाइव रेप्लिकास उसने बताया है कितने हैं डेटा नोड, कैन यू रीड हियर? डेटा नोड, डेटा नोड 1, डेटा नोड, this is the one first one, then data node 2 that is the second one, and data node 3 that is the third one। तीनों डेटा नोड के उसने अपने को मस्त आईपी दिए, और वहां पे उसने वो ब्लॉक का एड्रेस भी बता दिया अपने को। तो डेटा, मेटा डेटा सब बताता है लिनक्स, बहुत अच्छा है बेचारा, उसको पूछने की देरी है सिर्फ। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट टू आस्क लिनक्स, इट्स गोना टेल यू एवरीथिंग, है ना, सब कुछ बता दिया उसने। अब देखते हैं ये इंफॉर्मेशन यूज करके, ये एक कमांड से जिंगा को सब पता चल गया कि फाइल्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, रेप्लिकास कितने हैं, लोकेशंस कहाँ पे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम क्या करते हैं, किस तरह से डिंगा इसको यूटिलाइज करता है, वो हम देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, सिंस देयर आर 3 डेटा नोड्स, लेट्स हॉप ऑन टू वन ऑफ द डेटा नोड्स, क्योंकि डेटा डेटा नोड पे है ना भाई। ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, पे अटेंशन नाउ। अभी एक बात बताओ, इफ आई नीड टू गो फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूजर टू one particular node to another node, what are the requirements, what are the prerequisites, what do I need to know, what do I need to have? Oh my god, you guys are so smart, so smart. Who answered first? Let me see. Asif Akhtar, Prithviraj, Ahmed, top 3 people, very nice। की चाहिए हमको, चलो, नहीं, hold on, की को मैं पहले लेके आती हूँ कॉपी करके। इस की को मैंने क्या किया, इस की को मैंने कॉपी किया पूरी तरह से।
अब मैं स्क्रीन पे आती हूँ, नैनो बोल के एक फाइल बनाऊंगी मैं वहां पे, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर गाइस, कि मेरा की का जो नाम था जब मैंने क्लस्टर बनाया था वो क्या था। अगर आप लोग अटेंटिव थे तो आपको याद होगा, डे 1, या व्हेनेवर आई कम दैट इज द की आई हैव। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं एक अलग नाम से की बनाऊंगी, मे बी डे 2। ओके, नैनो से मैंने एक डे 2 नाम की फाइल बनाई, और मैं जो की लेके आई थी उसको मैं यहाँ पे अभी पेस्ट करूंगी, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स, देयर यू गो। अब वो की थी डे 1, ये की है डे 2, शुड इट वर्क? व्हाई डू यू से इट विल वर्क? नाम में क्या रखा है, ऐसे आंसर्स इंटरव्यू में हम देंगे क्या? अंदर का डेटा, डेटा मैटर्स, यस सतीश, डेटा मैटर्स, यू आर राइट। Metadata does not matter, metadata does not matter, the data is something that does matter. Okay, so let's try connecting to the data node using this key. Yeah, before that ch mode करना पड़ेगा हमको। Okay, done. अब करते हैं हम ssh -i, क्यों इतनी आवाज कर रहा है भाई तू? डे 2, सेंटोस, और आईपी क्या है, आईपी डेटा नोड का यहाँ से देख लेते हैं। सेंटोस @IP 172.31.3.159, just say yes and enter. Okay, so am I on my data node? अब डेटा नोड पे क्या है, डेटा नोड पे क्या रखा है? डेटा नोड पे डेटा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर डेटा, अगर जिंगा के पास की है तो जिंगा डेटा नोड से भी हमारा जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है और क्लस्टर को भी एक्सेस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझो, इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझो कि भाई हर आने जाने वाला इंसान जो लीगल होता है, जो हमारे घर में लीगली अलाउड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बड़े भैया है और उसने मम्मा से मिला के रखा है अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना, उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है जो फ्यूचर में आपकी भाभी बनने वाली है, भैया ने मम्मी से मिला के रखा है, तो कैन शी कम फ्रॉम द मेन डोर? कैन शी कम टू योर हाउस एंड विजिट योर मॉम एंड गेट यू सम गुडीज फ्रॉम द मेन डोर? यस, वैलिड है, लीगल है ना, पता है सबको इसके बारे में। लेकिन वहीं पे आपका एक छोटा भाई है, जब तक बड़े भाई के हाथ पीले नहीं होते इसका कोई चांस है नहीं, ये पाइपलाइन में है, वेटेड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को मम्मा आने देगी क्या मेन डोर से? तो उसको खिड़की से आना पड़ेगा, 3-4 खिड़कियां है घर में, है ना, खिड़की से आना पड़ेगा, वो खिड़की है आपकी डेटा नोड। पर डेटा नोड पे अगर एक बार आ गया तो बहुत बड़ी बात है क्या घर के अंदर घुसना? नहीं। तो इसी तरह से गेटवे से ही आप क्लस्टर एक्सेस करते हो, ये है क्या? Which means even if Jinga gets access to any of the data nodes, still Jinga is inside the cluster, and somehow Jinga will figure out how to access the cluster. Is that very clear to you all? Is this concept clear now? Gateway और खिड़कियों का concept, है ना? Okay, amazing. चलो, let's proceed. Huh, what is the time? Oh my God, I realize it's 4:15. चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं हम। अब sudo su रूट पे आ गए हम, cd करके रूट पे आ गए हैं। Now see what I'm doing. देखो cd/d किया मैंने, तो क्या बता रहा है वो आपको? dfs। अभी dfs/dn ये डायरेक्टरी होती है आपके डेटा नोड की। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, what we have to do, we have to find what? We have to find a particular block जो हमको अभी पहले वाले कमांड से -files -block -location से ब्लॉक एड्रेस मिला था हमको, आपने ध्यान दिया होगा कि डेटा नोड के आगे ब्लॉक एड्रेस था। I'll show you once again। तो हम क्या करेंगे, sudo से बोल रहे हैं उसको find
/dfs/dn-name, ये कमांड पे ध्यान दो. Okay, and then we are going to put the block address there. Last 4 digits delete करके I'm going to put a star there. Okay, so आपको क्या बताया उसने? What can you see on the screen? उसने आपको ब्लॉक एड्रेस दिया, उसने आपको डेटा दिया, उसने आपको मेटा डेटा भी दे दिया. Can you see my screen, guys? Are you all understanding क्या क्या हुआ यहाँ पे? Okay, जिंगा ने वाट लगा दी. Let's proceed. देखो बेसिकली कैसा है गाइस कि यहाँ पे आप रूट पे हो. अगेन किसी ने मुझे अभी चैट में ये डाला था कि रूट पे है ना तो sudo क्यों लगेगा एंड ऑल दैट. Try and understand what are we trying to access here. We are trying to access the directory of data node. DFS DN कर रहे हैं हम, है ना? तो वहां पे sudo लगेगा, आपको sudo permissions लगेगी. देखो ध्यान से. Can you see DFS there? cd/DFS कर रही हूँ मैं. DN पे जा रही हूँ. क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड बोला उसने. अब sudo कर रहे हैं हम. मिल गया एक्सेस. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड. तो जो हमको ब्लॉक एड्रेस उसने दिया था उसको हमने फाइंड किया और उसने आपको डेटा और मेटा डेटा और उसकी सब पूरी जानकारी आपको दे दी. अभी आगे बढ़ते हैं. कैट करके देखते हैं. कैट कमांड की पावर देखते हैं अभी हम लोग. अब ये पूरी पाथ आप कॉपी करो ऊपर से. DFS DN करंट वो जो ऊपर आया है जस्ट पेस्ट इट. और जैसे आपने पेस्ट किए आपको वो बता रहा है जो भी आपके फाइल के अंदर लिखा हुआ था. तो अगर मेरे फाइल के अंदर किसी के कार्ड डिटेल्स है, मेरे फाइल के अंदर किसी के अकाउंट डिटेल्स है, या ये बोलो कि कोई मिलिट्री वाला प्रोजेक्ट है जिसमें देश की सिक्योरिटी के बारे में डिटेल्स है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई कि नहीं हुई? मेटा डेटा भी दिया और डेटा भी दिया कि नहीं दिया? हो गया, प्रूव हो गया. इनसिक्योरिटीज इन हडूप देख रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे. यहाँ पे आप लोगों को मैं देती हूँ एक 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक. वापस आके 2-3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं और उसके बाद यू कैन गो, यू कैन रेस्ट फॉर द डे. ओके, सो नाउ प्लीज टेक अ 10-minute ब्रेक. टाइमर लगा के जा रही हूँ मैं. 10 मिनट्स में आप सब, आई वॉन्ट यू ऑल हियर. आई एम श्योर कोई कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि nobody wants to miss this, isn't it? Because this is something you're not going to find anywhere. So I'm going to see you back. Bye bye, see you in 10 minutes. All right, are we all here? Am I audible? Okay, so we are back after the break. I also had some water. I think you all had some tea, coffee. These afternoon sessions, guys. Do you all have lunch? I'll suggest eat something light, like stick to a fruit or some what to say, cornflakes or something. Don't eat too heavy food because हमारा learning होता है काफी. Can you hear me now? Am I audible? अरे बाप रे, जैन तो बिरयानी खा के बैठे हैं. तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं और इतने हैवी कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप बिरयानी खा के बैठोगे फिर तो हो गया. फिर तो सबको गुड नाइट बोलना पड़ेगा आफ्टरनून में. तो आई विल सजेस्ट जब आपके आफ्टरनून सेशंस होते हैं, स्टिक टू समथिंग लाइट which will not sort of trouble your mind much. Like I had decided to quit
टी एंड कॉफी, बट नहीं, अभी ब्लैक कॉफी की आदत है, बिकॉज रिमेम्बरिंग सो मच एंड डिलीवरिंग सो मच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एट टाइम्स. एनी विच वेज, चलो. तो या ब्लैक कॉफी, आई रियली लाइक इट. कमिंग बैक, कहाँ थे हम? डेटा जो होता है हमारा दो टाइप का होता है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा? लाइक आई मीन, डोंट गो बैक टू स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड और बोलो तीन टाइप है. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा एट रेस्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा इन मोशन, है ना? तो पहले मैंने आपको बताया कि डेटा एट रेस्ट को किस तरह से जिंगा ने डील किया, लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा इन मोशन अगर हमारे पास है तो उसके साथ जिंगा किस तरह से खेल रहा है. और उसके लिए जिंगा को लगेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं वायरशार्क. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं. यू रिमेम्बर हमने डिस्टिल डेटा बोल के एक ये बनाई थी, आउटपुट फाइल बनाई थी. हमारा जो आउटपुट है वो वहां जाके स्टोर होने वाला था. तो अभी जो हमारे फाइल एग्जिस्टिंग फाइल्स का डेटा है वो तो पढ़ लिया, जॉब भी रन किया जिंगा ने, लेकिन जो आउटपुट आया उसके साथ वो भी अगर वो एक्सेस कर पाए तो फिर तो क्या बात है ना? डाला उसने, चलो बता दो सारे कार्ड्स के पासवर्ड, और जॉब रन हो गया और सारे पासवर्ड्स आ गए. तो लेट्स सी इफ इट इज एबल टू एक्सेस दैट. तो हम आ जाते हैं हमारे जिंगा पे. ओके, जिंगा जिंगा जिंगा. अभी देखो हम क्या कर रहे हैं. HDFS, FSCK. अरे व्हाट इज हैपनिंग, होल्ड ऑन. HDFS, FSCK, यूजर, जिंगा, डिस्टिल डेटा वाली जो हमारी डायरेक्टरी है, जो जिंगा की डायरेक्टरी में हमने बना रखी है, उसमें से पार्ट R000, मतलब हमारे जो अलग अलग आउटपुट्स आए उसके 3 रेप्लिकास बने, राइट? उसमें से एक है ये वन पार्ट ऑफ द फाइल. और हम बोल रहे हैं सारे फाइल्स, ब्लॉक्स, लोकेशंस हमको सब बता दे दो, और हम एंटर कर रहे हैं. बताया? आ भी गए हो? सारा डेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया नजरों के सामने. तो मिल गया अभी झिंगा को हर चीज जो भी जरूरी थी. देखो डेटा नोड जो है उसका IP है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम SSH करके वो वाले डेटा नोड पे चलते हैं. Day 2 is the key. Oh yeah, he's too intelligent. Yes, and we are able to reach that data node क्योंकि हमारे लिनक्स ने उल्टी करके हमको सब बता दिया है कौन से डेटा नोड पे आपका डेटा रखा है. वहां पे जाके करना क्या है, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है. sudo su, जिंगा बन गया रूट, cd. अब कर रहा है बंदा फाइंड, DFS, DN, नेम, और वो जो ब्लॉक एड्रेस है वो देना है हमको वहां पे. देखो ऊपर उसने ब्लॉक एड्रेस दे रखा है हमको. जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने. कैट करके देखो, पाथ डाल दो वहां पे. देयर यू गो. स्क्रिप्ट विल बी अपलोडेड, डोंट वरी. कैन यू सी दिस? सारा डेटा जॉब रन होने के बाद जो आउटपुट आया उसका भी डेटा आपके सामने क्लियर आ गया. आया मजा? समझ में आया क्या चल रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सेशन? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी हमको क्या करना है? अभी हमको देखना है कि जिंगा जो है वो हमारा जो डेटा इन मोशन है उसको किस तरह से स्निफ करता है, उसको किस तरह से रीड करता है, उसको किस तरह से हैक करता है. तो उसके लिए उसको लगेगा एक वायर शार्क वाला इंस्टॉलेशन. लेट्स डू दैट. sudo yum install libcap and wireshark.
ओके जस्ट अ मिनट, एग्जिट करके सेंटोस पे आ जाओ। अब यहाँ से कमेंट फायर करो। जिंगा बन गए हम। ओके देयर वायरशार्क इंस्टॉल हो रहा है। हो गया इंस्टॉल। अब क्या करेंगे, हम एक डुप्लीकेट सेशन बनाएंगे। ठीक है, एक डुप्लीकेट सेशन लिया है हमने, लॉग इन एज सेंटोस। Yeah, Wireshark is a software that will allow you to sniff the data in motion. Just give me a minute. Hold on. थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बताएंगे आपको। हाँ, अब ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, pay attention now. Come back to your script. Now run this command. Dump cap -i eth 0. So it's saying capturing on eth 0, मतलब अभी इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे जो भी आएगा हम वो पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू सी दैट? टेम्प वायरशार्क वो कैप्चरिंग कर रहा है। ओके अब देखते हैं हम क्या होने वाला है। लेट्स सी। अभी हमने एक फाइल बनाई। सेंटोस पे आके एक फाइल बना दो, नैनो फाइल्स नाम की। पहले फाइल बनाई थी, अभी हम फाइल्स बना रहे हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसी डेटा डालना है तो कॉपी पेस्ट कर लो। जिंगा इज प्लेइंग विद हडूप सिक्योरिटी वाला, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, देयर यू गो। अभी sudo su hdfs करते हैं। होल्ड ऑन। hdfs why is it saying so? bin bash etc पासवर्ड में जाके देखती हूँ। होल्ड ऑन, बिन बैश का प्रॉब्लम होगा क्या? ये देखो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। HDFS जो है एंड में क्या बोल रहा है, वो नो लॉगिन, एसबिन नो लॉगिन बोल रहा है। तो एसबिन का बिन करो और यहाँ पे डालो बैश, बिन बैश कर दो। कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स कर लो, रन द सेम कमांड, देयर यू गो। हम आ गए HDFS पे, सीडी करके HDFS पे आ गए। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल। नहीं यार, दिस कॉपी पेस्ट थिंग ना, ये भी नहीं होता मुझसे। I'm really bad at this. I always make mistakes in copy pasting. This is so important. कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ भी खुद से लिखते नहीं है, टाइप करते नहीं है। ह्यूमन एरर को कोई स्कोप नहीं देना है, कॉपी पेस्ट ही करना है, और वही नहीं होता मुझसे। ओके नेक्स्ट, HDFS fs -mkdir user/HDFS, देयर हो गया, बन गई। अभी हम इसको पुट करते हैं क्लस्टर पे। नथिंग, आर यू फॉलोइंग? सिर्फ स्क्रिप्ट से कॉपी पेस्ट करते जा रही हूँ मैं कमांड्स। अब देखो जैसे ही मैंने उसको डाला वो फाइल को, कैन यू सी वहां पे पैकेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे वो एक एक रीड कर रहा है। फटाफट फटाफट सारा डेटा रीड हो रहा है वहां पे।
अब चले गए ये फाइल्स क्लस्टर पे और वहां पे वो क्या कर रहा है, स्निफ कर रहा है. तो नाउ कैन यू से दैट द डेटा दैट इज ट्रेवलिंग इवन वाया एसएसएच इज सेफ? No, it is not. SSH will secure the pipeline, but it will not secure your data. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी समझ में आया कि your SSH will secure the pipeline, but it will not secure the data inside the pipeline. उसके लिए अलग से हमको एन्क्रिप्शन करना पड़ता है. ये समझ में आ गया कि इनसिक्योरिटीज क्या है. तो सिक्योरिटी वाले टॉपिक बहुत आसान लगेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट सिक्योरिटीज आर. ठीक है. So this session is very 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 important. Yeah, Jinga is not on all machines. Jinga is only on gateway. See, IP check करो Jinga का. We are switching to Jinga. Okay, चलो 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 आगे देखते हैं. अभी लास्ट के एक दो कॉन्सेप्ट है guys, and then you should be able to go. अब मैंने क्या किया, ये पाथ कॉपी किया. ठीक है, फाइल के बाद से जो पाथ था उसको मैंने कॉपी किया. अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट में बस ये पाथ राइट वाली चेंज करो. और गाइस एक काम करके देखना, ये जो वी है ना वही तक का कॉपी करना. डोंट कॉपी दैट ग्रेप आई सिक्योरिटी. ओके, एवरीथिंग बिफोर हाइफन, कॉपी हाइफन वी ऑल्सो. जस्ट अ मिनट, उड़ गया वो. जस्ट कॉपी टिल हाइफन वी वर्बोज में बता हमको कि तू कर क्या रहा है, एंड पेस्ट इट. देखो हर चीज खोल खोल के आपको बता रहा है कहाँ से क्या जा रहा है, आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, कौन सा पैकेट पहले आया, कौन सा पैकेट बाद में आया, कितने फ्रेगमेंट्स में आया. एवरीथिंग इट्स टेलिंग यू. पूरा आपके सामने खोल के रख दिए कुंडली उसने. देखा आपने. अब पूरा कमांड डाल के देखते हैं हम लोग. ओके, हिट एंटर. तो मैंने उसको बोला था कि सिक्योरिटी वर्ड ग्रिप करके बता तू हमको. फाइल में लाके दिया ना उसने आपको, जहां जहां सिक्योरिटी है हर जगह आके उसने बताया. नो सचिन, एज आई एक्सप्लेन कि अगर आप डेटा नोड से भी पे जाके, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेटा नोड से भी जिंगा ने एक्सेस किया. इट हैड द की, और डेटा नोड से भी उसने डेटा एक्सेस किया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी तो आपने ये देखा कि वायर शार्क रन करके पूरे डेटा को किस तरह से एक्सेस किया है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. होल्ड ऑन. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम HDFS परमिशंस को जाके, आपको यू रिमेम्बर हमने उसको डिसेबल किया था कॉन्फ़िगरेशंस में, उसको अभी हम एनेबल करते हैं वापस से. Hold on, guys. I'll just take a sip of water. I've been talking since very long. I had a session in the morning, और फिर अभी afternoon में आपका session. My throat is gone for a toss. I'm talking since 10 o'clock in the morning. ओह, ओके ओके ओके. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, उसको टिक कर दिया दोबारा से. HDFS परमिशंस को टिक किया. एंड हम अभी, थैंक यू सचिन, हम इसको स्टेल सर्विसेज को रीस्टार्ट कर रहे हैं.
आया क्या फिनिश बटन? चोर को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए सही बात है, चोर वाला दिमाग चाहिए और पुलिस वाली डेयरिंग भी चाहिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं इम्पर्सोनेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, अभी ये तो सब बात हुई इलीगल हैकर्स की, इलीगल यूजर्स की, कि किस तरह से इलीगल यूजर्स आते हैं और किस तरह से क्या क्या करते हैं। कभी कभी आपका जो बाजू में बैठा हुआ दोस्त है, उसको आपसे खुन्नस चढ़ गई, उसको हो गया प्रॉब्लम, दिस पर्सन हैज स्टार्टेड एनविंग यू and he wants to make your life hell, he wants to trouble you, so what will that person do and how he's going to play with you, ये अभी हम आके देखेंगे यहाँ पे। Okay, now let's start. क्लियर करके आपको क्लियर दिखाई देगा। sudo user add user है, तो अभी हम दो यूजर्स बना रहे हैं। I'll just come back to Jinga and then I'll make one user. I'm adding a user, user A. Okay, let's give it a password. Okay, done. बैड पासवर्ड, हमको बैड रखना है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अभी फिलहाल हम ट्रेनिंग में हैं, अभी हम दे रहे हैं sudo user add user B। ठीक है, अभी इसको भी पासवर्ड दे देते हैं, आप एरो करके चेंज करो। पासवर्ड क्या देंगे, 1234 दे दो, डन। अब हम बनाएंगे डायरेक्टरी दोनों के लिए, यूजर ए के लिए एक और यूजर बी के लिए। दोनों के दो डायरेक्टरीज बना दिए। अब इनके ओनरशिप को भी हम, इनको ओनरशिप भी दे देंगे। एक मिनट, परमिशन डिनाइड बताया इसने। ओह सॉरी, sudo hdfs करना था यहाँ पे। अब हम बनाएंगे डायरेक्टरीज। अब hdfs पे डायरेक्टरी बनाने के लिए hdfs पे से एक्सेस करना पड़ेगा ना। hdfs fs-mkdir करके हमने दोनों के दो डायरेक्टरीज बनाए। अभी हम उसको ओनरशिप भी दे रहे हैं। इसका मतलब मेरा दिमाग अभी जंग पकड़ चुका है सुबह से सेशन ले लेके। आई नीड टू ईट एंड आई नीड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी, आई नीड एटलीस्ट वन सिप ऑफ कॉफी। ऐसे इडियोटिक मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलो एंटर। ओनरशिप दे दिया। आगे यूजर बी को भी दे देंगे हम, सी एच ओन से। चाउन नहीं बोलते हैं इसको, इट इज सी एच ओन, चेंज ओनरशिप। आई हैव सीन पीपल से चाउन कमांड, चाउन कमांड, नो इट्स नॉट चाउन। ओके, अब hdfs-fs-ls में यूजर में जाके देखेंगे। देखो, यूजर बी, यूजर ए सब क्रिएट हो गया। ओके, अब ये यूजर ए को जो है, ये बेचारा, ये दोनों भी लीगल यूजर्स है, दोनों भी प्रॉपर इंटरव्यू देके कंपनी में आए हैं, प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करके आए हैं। ठीक है, पर अभी ये जो यूजर बी है, ये थोड़ा सा मिस्चीवियस है, ये थोड़ा सा ट्रबल मेकिंग है, इसको थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट करने में मजा आता है। ठीक है, तो इसने बोला कि चलो, मुझे जो मेरा फ्रेंड है, इसको इसका थोड़ा सा मजा लेते हैं, ये बड़ा उड़ रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। तो ये जो मलिशियस पर्सन है यूजर बी, इसने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट किया जाए, है ना। तो इसने क्या किया, sudo su करके चेंज किया टू यूजर ए। और क्या किया उसने, यूजर ए के नाम से सारी मस्ती की। और सारी मस्ती यूजर ए के नाम से करने के बाद कुछ जॉब रन किया, कुछ ऐसे डेटा को हाथ लगाया जो नहीं लगाना चाहिए था, कुछ डेटा एक्सेस किया। और फिर इसने क्या किया, बाद में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए और अपने अपनी जगह पे जाके बैठ गया। इसके बाद ऑडिटिंग टीम आई। ऑडिटिंग टीम ने आके देखा कि अरे ये जॉब तो यूजर ए ने रन किया है। और फिर यूजर ए को बुलाया गया केबिन में, सब ज्वाइन हो गए, मैनेजर्स, कुछ एचआर वाले स्पॉक भी आ गए। क्या किया बंदे ने, कंप्लायंस डेटा को हाथ लगाया, कंप्लायंस डेटा को हाथ लगाया, और आराम से उसको एक वार्निंग इशू हुई और उसका हुआ बैम्बू सेशन। भारी भरकम गालियां पड़ी उसको, भारी भरकम वार्निंग्स मिली।
और बंदा हैरान है, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आई हैवंट डन एनीथिंग, देयर इज नथिंग दैट आई हैव डन, what is going on? I did not run two jobs, I ran only one job, I don't know how it is showing under my name. कुछ पता नहीं बेचारे को क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। यूजर भी अपना काम करके आराम से जाके बैठ गया। लेट्स सी हाउ दैट इज डन। तो ये आपके साथ हो सकता है, सावधान रहे, सतर्क रहे, है ना। ओके, सो आई एम जस्ट स्विचिंग यूजर्स। पासवर्ड जो आपने दिया था डालो। अब आ गए यूजर ए पे, आप यूजर बी बन गया यूजर ए। अब क्या कर रहा है, ही इज गोना रन अ जॉब। लेट्स रन सम जॉब हियर, कोई छोटा सा जॉब रन करते हैं। ये दिया है यहाँ पे एक रैंडम राइटर, एक्चुअली ये बहुत स्पेस कंज्यूम करता है ये पर्टिकुलर जॉब, क्लस्टर को पूरा निचोड़ देता है, लेकिन ठीक है चलो करके देखते हैं। एंटर। तो इसने जॉब तो रन कर दिया, और आपका जो क्लस्टर है वो है नहीं सिक्योर, आपका कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है नहीं, तो यूजर बी ने स्विच किया। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट, क्या प्रॉब्लम है। रैंडम राइटर की जगह वर्ड काउंट ही रन कर लेते हैं। जस्ट सिलेक्ट समथिंग एंड पुट इनटू दैट फाइल, सेव इट। एक फाइल बना ली मैंने डेटा के नाम से, कॉपी पेस्ट किया कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन। Hadoop fs hyphen put the file on the cluster data। हाँ, एक आउटपुट नाम की डायरेक्टरी में मैंने सेव किया, एंड नाउ आई एम गोना रन अ जॉब। आई गेस मोइन इज आस्किंग मी कि मैम बट अगर यूजर ए का पासवर्ड बी के पास नहीं होगा तो कैसे करेगा। भाई वहां पे अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो सुपर डुअर प्रिविलेजेस लेके सूडो कर देगा वो, सूडो यूजर ए, मत पूछ मेरे को पासवर्ड, सूडो कर। पूछेगा क्या, किसी की हिम्मत है क्या पासवर्ड पूछने की। पापा की जेब में आप हाथ नहीं डाल सकते परमिशन के बगैर, पर पापा आपकी जेब में कभी भी हाथ डाल सकते हैं आपकी परमिशन के बगैर, है ना। उसी तरह से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस जॉब। होल्ड ऑन। ये जो है डिजिटल डेटा, इसको हम कर देते हैं जस्ट डेटा, और आउटपुट नाम के इसमें हम सेव कर रहे हैं उसका आउटपुट। ओके, हुआ किरण भैया। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी सी। होल्ड ऑन, क्यों जॉब रन नहीं हो रहा है। होल्ड ऑन, गिव मी अ मिनट हियर, देख रही हूँ मैं भी।
Okay guys, just a minute, okay? Hold on, hold on. Just try to run this job first. What is it saying? क्या चलना तो चाहिए ये। करके तो देखते हैं कुछ R&D यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। जॉब स्टार्टेड तो बता रहा है। द जॉब इज डन। देयर यू गो। ओके, तो जॉब हमारा सबमिट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने? हमने क्या किया, यहाँ पे हम जिंगा पे गए। जिंगा पे जाने के बाद हमने जॉब रन किया, जॉब जिंगा पे से सबमिट किया, वहां पे हो गया। सो बेसिकली यूजर ए जो है, इसको पता ही नहीं है कि यूजर बी ने स्विच यूजर करके इसका एक्सेस ले लिया। अब ये यूजर बी जो है, ये हमारा जिंगा है, इसने एक्सेस लेकर ये जॉब रन कर दिया। इसके बाद एज एन एडमिन हाउ विल यू टेल कि भाई ये बंदे ने स्विच यूजर करके ये जॉब सबमिट किया है? इज देयर एनी वे टू टेल? एकदम लीगल वे तरीके से बंदे ने किया है। एनीवे, इज देयर एनी वे टू टेल कि कैसे इस चीज को वो पर्सन ने किया? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर विल यू बी एबल टू टेल? नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू टेल। प्रॉपर वे में, लीगल वे में, इंटरनल यूजर्स है ये दोनों। लीगल वे में बंदे ने स्विच यूजर किया और उस यूजर के नाम से सबमिट किया, तो नेविगेटर में अगर इसका एंट्री भी आएगा तो उसी यूजर के नाम से आएगा, किसी और के नाम से नहीं आएगा। तो पकड़ किसकी होगी? यूजर ए की होगी। यूजर बी की होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है।
अब आगे, अभी आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम हाइव का। जस्ट गिव इट फ्यू सेकेंड्स, आ जाएगा वो हाइव। शो डेटाबेसेस। Okay, let's move forward. Let's see the script. देखो अभी हाइव इसलिए देख रहे हैं हम कि दो तरह से दो क्लॉजेस होते हैं हाइव में। हाइव हर जगह यूज होता है, और हाइव में दो तरह से ट्रांसफॉर्म मतलब बेसिकली दो ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉजेस होते हैं हाइव में। एक तो तुम डेटा ऐड कर सकते हो, दूसरा तुम कोई टेबल ड्रॉप कर सकते हो। ये दो थ्रेड्स होते हैं हाइव में। तो हम देखते हैं किस तरह से डेटा ऐड वगैरह किया जाता है या टेबल ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ये दो थ्रेड्स है हाइव के। तो स्क्रिप्ट पे आओ, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है और आपको देखना है मैंने क्या किया है। क्रिएट टेबल ब्यूटी, ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग, मतलब उसके अंदर जो भी कॉन्टेंट्स है सब स्ट्रिंग वाले हैं, और रो फॉर्मेट डिलिमिटर बदल के एंटर किया। अभी नेक्स्ट करेंगे हम शो टेबल्स। हो गया, बन गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब ब्यूटी। देखो ए बी सी ये तीनों भी स्ट्रिंग्स है, ऐसे उसने बताया। आगे अगला टेबल है बनाना अगली। एक ब्यूटी एक अगली, सेम चीज हम यहाँ पे भी करके देखते हैं। देखो बन गया, टेबल बनाना आ गया। You can find out where the files backing this table are stored in HDFS. Add data to a pair of files. Tab delimited data sets and data sets. Data set create करो। ठीक है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आप लोगों को जो है, ये आप लोगों को आ जाएगी। ये स्क्रिप्ट को फॉलो करके बाकी की चीजें आप लोग करके देखना कि आप ड्रॉप किस तरह से करते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं GUI से भी बता दूं, यू से। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट गो थ्रू और क्या क्या बचा है स्क्रिप्ट में। देखो अब यू में जाते हैं। जनरली हमारे जो एनालिस्ट है ये सब लोग यू यूज करते हैं क्लस्टर एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यू कैन टाइप इन एनीथिंग हियर। मैं एडमिन डाल रही हूँ, आप अपने नाम से भी एंटर कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ETC पासवर्ड्स में आपका यूजर क्रिएट हो जाता है। आ गया। देखो जो टेबल्स हमने बताए वो आपको GUI पे दिख रहे हैं। ब्यूटी अगली, डिस्क्राइब ब्यूटी। Click on that blue arrow, you will be able to see beauty, A string, B string, C string. तो टेबल क्रिएट करना आ गया जिग्गा को। तो आइदर ही कैन क्रिएट टेबल्स और ही कैन डिलीट। ये दो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉजेस होते हैं हाइव में। नाउ देखो, ड्रॉप ब्यूटी, BEA, आ क्यों नहीं रहा है, BEAUTY। होल्ड ऑन ना, ये एक्चुअली हमारा काम है नहीं, पर आपको करके बता देते हैं। ड्रॉप टेबल ब्यूटी, ब्लू एरो पे क्लिक करो। कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिंग द कमांड, हो गया, ड्रॉप हो गया। देखो अभी आपको सिर्फ अगली दिख रहा है, ब्यूटी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कौन?
So हम दो चीजें कर पाए. We were able to add the data to the cluster, and we were also able to drop the tables from Hive. Okay, so that was about insecurities in Hadoop, and now we will see. अभी आगे और एक 4 घंटे का आपका सेशन है. 5 मिनट का ब्रेक लो और आ जाओ. 4-5 घंटे का एक और सेशन लेती हूँ आपका सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें हम Kerberos and Active Directory and KMS सीखते हैं. So I think you all should go for a 5 minute break, and then another session on security, and it will be around 4 to 5 hours. So I hope you all are ready. Acha, I need rest. Okay. No, guys, I won't torture you to death. That's all for today. Uh, this was a session on insecurity, and the upcoming session would probably be on security. Okay. So have an amazing evening, and do take care of yourself, and see you soon. Bye bye. Take care.